गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडिया वर्सेस चाइना डाउजिंग द ड्रैगन के बारे में बात करेंगे। यकीन नहीं होता पर हो रहा है ये। एंड इंडिया हैज स्टार्टेड डाउजिंग द ड्रैगन। द पॉइंट इज दिस, बहुत लोग बोलते हैं कि लुक इंडिया इज फार बिहाइंड, हमारा जीडीपी कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या चाइना विल स्वamp us? Whatever you want to say. Might be true, might not be true. But there is something happening. China can be big, but today India is on the move and China is static. That is why मैंने सोचा कि ये टॉपिक लो, डाउजिंग द ड्रैगन, और इसीलिए एक कार्टून भी जहाँ एक हाथी, इंडियन हाथी, ड्रैगन के ऊपर पानी फिर रहा है और उसको ठंडा कर रहा है। आज का जो टॉक है तीन चार भाग में होगा। एक तो I'll talk about where India is moving ahead of China in certain terms. The second, I'm going to talk of issues of India or neighboring countries. Third, again, a direct issues related to India and China, geopolitical issues, geostrategic issues. And last, I got a very interesting, comment through WhatsApp on the last episode I did on crashes of China. उसका मैं विश्लेषण करूंगा. So it'll be in four parts. But most importantly, when you look at China, we feel it is doing everything great and all that, despite what all I talk, and we are not confident that we are doing something. And whatever our media says, we ignore it. So much of my talk is based on how China views India, how the Chinese people or the Chinese journalism or Chinese media has painted India. When you look at the Chinese media, and खास करके South China Morning Post, because that's the only one which I find covers a whole range uh, in okay. It gives you half truth, half propaganda, everything. That's why I pick it. It's easy to communicate with the South China Morning Post editorials. What they talk, when you look at all the news coming out of South China Post, 60% to 70% of news about India is against India. It's against India. इंडिया में ये होता है, इंडिया में वो होता है, और वगैरह वगैरह। यहाँ तक आज का फार्मर्स मार्च के ऊपर भी दिल्ली अंडर लॉकडाउन हो गया। हल्द्वानी में जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट कुछ आ गया। ऑल दोस आर देयर, बट दे ऑल्सो नो कि इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है, एंड देयर आर प्लेसेस वेयर इंडिया इज getting far ahead of China, and they come out with it. Why? They feel threatened. डर लगता है उनको। अगर उनको एक देश से डर है, वो है इंडिया के साथ। Okay, so let us start the whole story where we are going. But before I go to picking up the nitty-gritty of what the subject is, 2 मिनट पहले ये मैंने फीड में देखा, सिंधु makes stunning comeback as India stunned China. India just bet today China 3-2 in badminton in Malaysia.
in a group match to top the table. आगे क्या होगा देखेंगे. But why is this important? हो सकता है हम फाइनल में हार जाएं, सेमीफाइनल में हार जाएं, नेक्स्ट राउंड में ही हार जाएं, डजंट मैटर. बट व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ अ नेशन. बहुत साल यू नो बैडमिंटन में खास करके चाइना इज सपोज टू बी अ पावर हाउस. हम उनके सामने खड़ा नहीं रह सकते थे, चाहे साइना नेहवाल हो या पदुकोण टाइप हो उन दिनों से. बट ऑफ लेट we have started beating them. And this is just, I picked it up. 5 मिनट पहले मैंने ये देखा और मैंने उसको चढ़ा दिया. इट रिप्रेजेंट समथिंग. आप इसको देखिए. अ, ये तो बैडमिंटन में हुआ. आप बाकी स्पोर्ट्स में भी देखिए. आप देखिए आजकल अ, तीरंदाजी में हमारे लड़के और लड़कियां अच्छे कर रहे हैं. क्रिकेट में तो है हम पावर हाउस. इवन हॉकी इज रिसर्जेंट. Okay, so you see a shift in games. And when nations become good at games, you know that nation is going up. When people in a nation start playing games professionally, you know that nation is on a different path altogether. So that's what this win signifies. That too over China, जहां चाइना ने बैडमिंटन स्पोर्ट को पिछले 10 साल डोमिनेट किया है. राइट. तो हम आजकल ये बात नहीं है कि यही जीत हुआ है, इससे पहले भी जीत हो चुका है एक आध बार. बट टुडे यू आर टॉकिंग ऑफ इट. ओके, फर्स्ट थिंग, MSCI cuts dozens of China stocks from its global month benchmark indices and raises India's weightage to record high. Straight. China's gone down, India's gone up. What does it say? When nitty gritty. What is MSCI? Morgan Stanley Capital Investments. इनका इंडेक्स है ये MSCI index. It's added 5 stocks to the global standard index. No deletions, but deleted 66 Chinese stocks and just added 5 members. But that's not the whole story. वही नहीं है. उन्होंने टोटल 66 चाइनीज स्टॉक्स निकाला है पिछले 2 साल के अंदर. ये मैक्सिमम है. और इंडियाज वेटेज इन इट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड emerging मार्केट्स का इंडेक्स में इट्स राइजन टू अ हाई ऑफ 18.2%. India's weightage in the index has nearly doubled since November 2020, 3 साल के अंदर. And it is the second highest weightage in MSCI Global Standard Index after China. China अभी भी it occupies the maximum space, but relative movement is reducing. The space is reducing. That's important. ये समझने की बात है कि how we are slowly catching up within China, and we'll do so. It's a matter of time. Okay, मैं तो बोल सकता हूँ crashes of China, ड्रीम वगैरह वगैरह, पर इंडिया के ऊपर क्या असर है? ये असर है. ओके, नेक्स्ट. एक ही नहीं है. वॉल स्ट्रीट snubs China for India in historic market shift. ये जो आर्टिकल है ये 5-6 दिन पहले आया. ये जो पहले जो मैंने देखा है परसों आया था. ये सिर्फ जनवरी की बात है. ये पिछले साल भी मैं काफी आपको एग्जांपल्स दे चुका हूँ. ओके, अगर आप इस आर्टिकल को भी नजदीक देखोगे, देयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. ओवर द पास्ट 2 decades, India's gross domestic product and market capitalization rose in tandem
from $500 billion to US 3.5 ट्रिलियन। अब सोचिए 20 साल के अंदर आपका हमारा जीडीपी 60 बार 7 टाइम्स बढ़ गया है। ओके, एंड इंडिया ब्रीफली ओवरटुक हांगकांग एज द फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट लास्ट मंथ। और मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि इट विल बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030। वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके ये जीडीपी का जो इन्होंने बताया कि 7 साल की सॉरी 2 डिकेड्स 20 साल के अंदर 7 गुना हमारा जीडीपी मल्टीप्लाई हो गया है। इसका मतलब क्या है? तकरीबन 6-7 साल के अंदर, राइट, 6-7 साल के अंदर आपका डबल हो रहा है। मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, 2 का 4 का मतलब टोटल कितना हुआ? 7। 20 साल में 7, 2 बार डबल हो चुका है। अगला साइकिल जारी है अभी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग इसके बारे में मेरे ख्याल में जिक्र भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है कि ठीक है, चाइना का जीडीपी बड़ा है, इसमें डाउट नहीं है। $17 ट्रिलियन नहीं तो 10 ट्रिलियन होगा, 10 नहीं तो 13 होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। ओके, और हमारे जो स्टॉक्स वगैरह ऊपर जा रहे हैं, चाइना का स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कल भी बात किया था, परसों भी, मार्केट क्रैश चाइना के अंदर। सो इट्स अ रियलिटी। ओके, उसके अलावा क्या है? इंडिया जीएमआर ग्रुप potential front runner for 3 billion Manila airport project amid China tensions। तो अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फिलीपींस में, जो चाइना के बगल में है, आप सोचो इसका इम्पैक्ट क्या है। और जो मैंने लिखा है अभी वो ऑरेंज बॉक्स में, फिलीपींस बीआरआई में था, चाइना was के बगल में है, बीआरआई कंट्री है। अभी फिलीपींस ऐसे नो, विल गो टू इंडिया। ये बड़ा शिफ्ट है ये। You don't you don't understand India's influence is growing। ओके, और फिलीपींस का प्रॉब्लम है चाइना के साथ। आगे ही आपने फिलीपींस को ब्रह्मोस भी बेचा है। वियतनाम के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात हैं, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल नहीं परसों बात 20th को बात करेंगे एम्बेसडर गुरजीत सिंह के साथ। एक बार आपने यहाँ एयरपोर्ट वगैरह बना दिया तो यू जस्ट थिंक ऑफ द चेंज इन थिंकिंग between how we start thinking. You have to start thinking differently. Okay, okay, ये भी बोलते हैं, वो बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था ये। I didn't know that India will be a renewable energy hub। We keep reading China is doing this, China is doing that, solar panels, energy hubs in Saudi Arabia, X, Y, Z. But here it is, they are telling India is said to be renewable energy hub with hundreds of billions earmarked for projects। हमने नहीं देखा ना, हमारे न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया, उनका न्यूज़पेपर कवर कर रहा है। क्यों? उनको कंपटीशन यहाँ से महसूस हो रहा है। हाँ, लोग बोलेंगे कि भाई हमारा जो ये तो आप कर रहे हो, पर आपका जो सोलर पैनल्स वगैरह चाइना से आता है। ठीक, हो सकता है कल के दिन सोलर पैनल यहीं बने, कोई प्लान हो हमारे पास, वो आ जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओवरनाइट कोई चीज नहीं होता। ये जो बदलाव है हमारे देश के अंदर, अगले 10-15 साल में होगा। ओके, चाइना में प्रॉपर्टी क्रैश हो रहा है।
India's trend-defying property market is a sight to behold. ये चाइना वाले बोल रहे हैं। वहां कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए राजी नहीं है। यहाँ तो प्रॉपर्टी इज राइजिंग। सो शिफ्ट, रिलेटिव शिफ्ट, ओके, देयर इज अ रिलेटिव शिफ्ट हैपनिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ बार बार, ये मेरा कल्पना नहीं है, ना आपका कल्पना है, ना हमारा मीडिया वालों का कल्पना है, या मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्पना है। ये चाइना का हकीकत है। उनका हकीकत है कि ये सब रिपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। रेडी फॉर टेक ऑफ, India's aviation sector set sights on growth despite bumpy start to 2024. So you're going to become one of the biggest hubs of aviation. Okay, आप देखिए, despite challenges, some analysts view the recent issues as seasonal or isolated incidents. Last second line देखिए, India, the world's third largest civil aviation market, transported over 153 million passengers last year and hopes to double that number by 2030. ओके, तो 300 मिलियन, अगर 300 मिलियन पैसेंजर अगले 6 साल में और आएंगे, तो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर कितना होगा बड़ा। तो द गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना आप देखेंगे विल कीप रिड्यूसिंग। ये मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ। अभी ये चाइना वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं, राइट? ट्रस्ट मी। और जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको भी दीजिए, ओके? और कृपया लोगों को बोलिए आके सब्सक्राइब करें गणेश शॉट को, बेल बट आइकॉन दबाएं। मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैंने आज एक वीडियो देखा था ऑन एल्गोरिदम्स ऑफ यूट्यूब। उनके एल्गोरिदम्स के मुताबिक कमेंट्स जिसके ज्यादा होते हैं या चैट्स जिसके ज्यादा होते हैं, यू गेट बेटर व्यूअरशिप। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप चैट कर ही रहे हो, मैं सवाल भी दे रहा हूँ, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक आदमी 2-4 कमेंट दे दीजिए, 2-4 कमेंट दे दीजिए डिस्क्रिप्शन के बाद, ताकि वो कमेंट का लिस्ट अगर बढ़े तो मेरा चैनल तो बढ़ेगा, और चैनल बढ़ेगा तो मेरे को भी थोड़ा, क्या बोलते हो उसको, खुशी होगी कि लोग, ज्यादा लोग सुन रहे हैं ये हकीकत। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये इसमें ये पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज आर्टिकल ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। और ये आर्टिकल अगर हम पढ़ेंगे तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहले थोड़ा इसका नजदीक देखेंगे। क्या बोलता है? इंडिया क्वाइट पुश टू स्टील मोर ऑफ चाइनाज आईफोन बिजनेस। ओके, तो ये पिक्चर क्या दिखाता है, और ये आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आर्टिकल बोलता है, जिस तरीके से चाइना के अंदर फॉक्सकॉन ने पूरा फैक्ट्री लगाया है फॉर एप्पल, उसी तरीके से इंडिया में होने वाला है। एंड इंडिया विल बी द बिगेस्ट हब फॉर एप्पल वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स। और इसके लिए ये फोटोग्राफ जो है, ये इनका टाउनशिप जो श्री पेरुम्बदूर आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई में बन रहा है। और कुछ दिन पहले हम गए हुए थे तिरुपति, और इसको मैंने देखा, यार ये बिल्डिंग वगैरह आ रहा है, राइट? तो ये क्या है, ये देखने वाली बात है। और आई थॉट लेट मी यू नो अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। और 2 दिन पहले मैंने ये
आर्टिकल देखा और आई थॉट लेट मी शो इट टू ऑल ऑफ यू. We are going to get the way things are a full township there where the Apple phone factory is coming and it is serious. जिस तरीके से वहां बन रहा है यहाँ भी बन रहा है और धीरे 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 ये बढ़ेगा. आज के दिन सब बोलते हैं, राइट? लोग ये डीकपलिंग और डी रिस्किंग के चक्कर में ज्यादा लोग वियतनाम जाते हैं, कुछ बांग्लादेश जा रहे हैं, कुछ इंडोनेशिया जा रहे हैं, कुछ और कुछ कहीं. बट उनका हद एक है. इसी द चाइना एक्सपोर्ट मार्केट इज ह्यूज, ह्यूज. कुछ मेक्सिको भी जा रहे हैं, इज ह्यूज. जब उन सब का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा तब सारे इंडिया आएंगे. और ये इसके बारे में मैंने 3 साल पहले लिखा था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री which can match China in scale. It's the only alternative to China in scale and population and everything else. और ये साकार हो रहा है और ये साकार होगा. और इसीलिए हमारा एविएशन सेक्टर ऊपर जाएगा, इसीलिए हमारा स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, सब ऊपर जाएंगे. देखते रहिए. ओके, नेक्स्ट. इसीलिए हमने फॉक्सकॉन सीईओ को पद्म भूषण भी दे दिया हमारा गवर्नमेंट ने. ओके, और वो कमिटेड है. क्यों दिया? वो फ्री में थोड़ी ना दिया. वो खुद कमिटेड है कि भैया मैं चाइना में रहना नहीं चाहता, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा. एप्पल लगा रही है फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री. और इसके बारे में मैंने पिछले साल भी जिक्र किया था आपको और ये एक्शन हो रहा है. फिर क्यों आप लोग हमारे चैनल नहीं देख रहे हो? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा. I don't know. I mean, whatever I have said about China is coming true. And I see Tibetan monk saying, yeah, he says, I have been watching your shows since long time ago. You started covering and unmasking China. Okay. He's also said, salute to you. I also salute you for watching it. And still people don't see why. क्या हमारा कॉन्फिडेंस कम है हमारे अपने आप के ऊपर कि हमारा जो सफलता है हम खुद अंदाज नहीं लगा सकते हैं? हो सकता है, बट हमारा प्राइम मिनिस्टर को देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं. ओके, ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उनका लेख है. हमें किसी एक हमारा मीडिया में कवरेज इसका हुआ नहीं है. और क्या बोलता है ये? ग्लोबल राइस शॉर्टेज लूम्स एज टॉप एक्सपोर्टर, इंडिया सप्लाई वोज वर्सन अमिड रेड सी अटैक. व्हाट इज द इशू? The issue is that we are the top exporter of rice in the world. We have some problems कि रेड सी के अंदर नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह. बट द बेसिक फैक्टर, हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा डिले हो जाएगा, दैट्स ओके. बट द बेसिक फैक्टर इज इंडिया इज द टॉप राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. ये चाइना वाला बोल रहा है. और एक भूखे नंगे चाइनीज, इनके पास तो खाना भी नहीं है, खाने के लिए फूड सिक्योरिटी है ही नहीं. अब देखिए फिर अंतर. फिर अगर हम बोले कि इंडिया इज डाउजिंग द चाइनीज ड्रैगन, सही है कि नहीं है? आप खुद अंदाजा लगाइए. ओके, अगर मैं खुद बोलूं कि मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मानूंगा. पर ये तो वो बोल रहे हैं. ओके, आगे बोलते हैं, देखते हैं. हमने ये वीवो के ऊपर टाइट कर दिया क्योंकि ये चोरी कर रहे थे हमारा पैसा, फ्रॉड कर रहे थे. इंडिया अरेस्ट 2 सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ चाइनीज स्मार्टफोन मेकर वीवो. ओके, यही नहीं है, दूसरा जियोमी, ये भी रो रहा है यहाँ. ठीक है, क्योंकि इनका बिल्कुल छानबीन हो रहा है. ये
दे कांट गो एनीवेयर। तो उनका जो सब बोलते रहते हैं हमारा इंपोर्ट फ्रॉम चाइना बढ़ रहा है, कम से कम उनको टाइट तो कर रहे हैं हम, उनको डर है ये। ओके, राइट, लेट्स सी नेक्स्ट। इंडिया China India trade tensions may continue in 2024, but Beijing doesn't want to rock the boat. This is again a very interesting article. इसके बारे में पहले भी बात किया, बट आज के संदर्भ में बात करना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? There is no doubt that our trade with China is going up. इसमें कोई दो राय नहीं है, और imports बढ़ रहे हैं जहां कम होना था। इसके बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। पर चाइना के हाथ यू नो चाइना के हाथ में है टैप, बंद कर सकते हैं। अगर वो हमारा एक्सपोर्ट टू इंडिया बंद करेंगे तो क्या होगा? हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ेगा। पर उनके लिए भी तो असर पड़ेगा, वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो एक्सपोर्ट पहले कर रहे थे वो भी लुढ़क जाएगा, तो उनका ओवरऑल एक्सपोर्ट तो कम होगा ना। और वो घूम रहे हैं कि इंडिया को और एक्सपोर्ट करना है, इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाना है। चाबुक उनके पास भी है, चाबुक हमारे पास भी है, बैलेंस है। और इसमें भी देखिए, जहां स्मार्टफोन्स वगैरह जहां वो फ्रॉड कर रहे थे, हमने स्टैंड ले लिया। उससे पहले हम नहीं लेते थे, 3-4 साल पहले, 3 साल पहले हम नहीं लेते थे। 2020 लद्दाख के पहले हम नहीं लेते थे स्टैंड अगेंस्ट चाइनीज इंटरप्राइजेस, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो या यूपीए गवर्नमेंट हो। पर आजकल हम ले रहे हैं, सख्त कदम उठा रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया, उनका पैसा जब्त कर लिया। तो बदलाव हो गया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इसीलिए वो कार्टून के साथ वो बार बार वो कार्टून लेके आता हूँ मैं। एलिफेंट इज डाउजिंग द चाइनीज ड्रैगन्स फायर। ओके, ये भी नहीं मेरे को पता था। मेरा लड़की रहती है बैंगलोर में, पर मेरे को ये नहीं पता था बैंगलोर इज नाउ अ बीकन ऑफ कल्चर। ओके, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, फूड, सब में। मेरे को नहीं पता था, मैंने सोचा यार फूड वगैरह आर्ट कल्चर के लिए बॉम्बे मशहूर है, क्योंकि बॉम्बे में रह चुका हूँ, बैंगलोर में भी रह चुका हूँ। कल्चर मानो तो आप इधर आइए, चेन्नई में, राइट। हाई लिविंग चाहिए तो आप दिल्ली। पर ससुरा ये तो बोल रहा है यार कि बैंगलोर इंपॉर्टेंट है, इंडिया सिलिकॉन वैली वो बोल रहा है। ओके, बहुत लोगों का ये था कि भूटान के अंदर चाइना घुस रहा है, भूटान के साथ बात हो रहा है, एक्स वाई जेड। वो चाइना इज अबाउट टू इन भूटान इज अबाउट टू मेक अ डील विद चाइना। सही है कि अगर एक वो डील हो गया तो सबका डर ये है कि भूटान जो है इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। ये डर भी सही है। पर ये आर्टिकल देखिए, ये क्या बोलता है? भूटान सीक्स इंडिया डील्स इन 15 बिलियन हाइड्रो पावर पुश टू रेस नेशनल हैप्पीनेस। चाहे वो चाइना के साथ कुछ डील करे ना करे, हमारा साथ तो रुक नहीं रहा ना। उनका मेन एक्सपोर्ट है बिजली। और अगर आप हिमालय में गए हो तो पानी वहां से यहाँ आता है, ठीक है, वहां से यहाँ आता है, जलडा का बेसिन में पानी वहां से आता है, तोरसा नाला वगैरह, राइट। वहाँ एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, मेरे को याद है अभी जब मैं भूटान गया था 1982-83 में, चुका हाइडल प्रोजेक्ट वो हमने बनाया था। और मैं उन दिनों में वहां था जब ये बन रहा था। और वो हाइडल प्रोजेक्ट की वजह से, चुका हाइडल प्रोजेक्ट की वजह से नॉर्थ ईस्ट में वही नहीं, बाकी 2-3 और प्रोजेक्ट है वहाँ, उनकी वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ बंगाल में, असम में बिजली का सरप्लस हो गया है। ओके, अगर ये प्रोजेक्ट लग गया वो उधर, फिर तो आपको कारोबार लगाने के लिए भी आपको बिजली आ जाएगा। फिर तो वो इलाका ही बदल जाएगा।
डेवलपमेंट कितना होगा आप सोचिए। हमारा ही नहीं, भूटान विल एक्सपोर्ट पावर टू अस, क्योंकि इट कैन नॉट एक्सपोर्ट पावर दैट साइड, वहां कुछ है ही नहीं। वो पावर अगर प्रोड्यूस भी होगा तो इंडिया ओनली हैज टू कंज्यूम। ये चाइना वालों को पता है, आपको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, फिर मेरे को तो पता है, मैं तो गया हूं उधर, और चाइना वालों को भी पता है, इसीलिए वो ये रिपोर्ट हो रहा है। ओके, सब बोलते हैं कि मालदीव भाग जाएगा, ये वो चाइना के पास चला जाएगा, एक्स वाई जेड। बट व्हाट डज दिस से? ये चाइना वाला बोल रहा है कि मालदीव स्टिल नीड्स इंडियाज पार्टनरशिप डिस्पाइट शिफ्टिंग डायनामिक्स इन दिल्ली मालदीव टाइज एंड ट्रू पेट्रोल। और ये भी रिपोर्ट कर रहा है किसकी बात? मुइजू की बात, राइट? ओके, देखिए, फर्स्ट लाइन में देखिए, देयर इज मच अटेंशन ऑन चेंजिंग डायनामिक्स इन इंडिया मालदीव टाइज, but Maldivian leader Mohammad Muizzu has said that the island nation still needs India Delhi's partnership. ये हमने पहले हमारे वेबिनार में भी बताया। अब चाइना वाले बोल रहे हैं तो आपको यकीन करना पड़ेगा। वो तो बैठ जाएगा मुइजू जी सर के ऊपर पतीला रख के, कल के दिन अगर उसको दिल्ली मदद ना करे, क्योंकि चाइना नहीं कर सकता उनको। ये आर्टिकल में लिखा है कि चाइना इनको एक हद तक मदद कर सकता है, ये वगैरह वगैरह, उसके ज्यादा नहीं कर सकता। और ऊपर वहां मिनिकॉय में हम एक बेस बना रहे हैं, वो आज ही मैंने इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ा था। और अगाटी को भी थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बेस आ गया उधर, ये माशे कहाँ जाएंगे? तो फिर चाइना कहाँ आ रहा है इधर? टक्कर है तो होगा। इसमें थोड़ा इशू है बांग्लादेश में, क्योंकि चाइना हैज मेड रूट्स इन बांग्लादेश, और हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी ये बोलते हैं इंडिया एंग्शियस फॉर स्टेटस को, पर ये तो इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शंस के बाद अगले 3-4 साल के लिए हमारा रिलेशन स्टेबल है, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ का कम करें, राइट? ये देखिए, श्रीलंका, वो खुद बोल रहे हैं श्रीलंका बैन ऑन चाइनीज शिप और विक्ट्री फॉर इंडिया, बट शोज लिमिट ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड बिग पावर राइवलरी। बात हमें समझना चाहिए कि जितने हमारे इर्द गिर्द देश हैं, वो छोटे देश हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि चाइना और इंडिया के बीच में वो पिस ना जाए बिल्कुल। अगर हम उनको बचा लेंगे और हमारे ओर आकर्षित करेंगे, तो फायदा हमें होगा। कुछ तो इश्यूज होंगे उनके और हमारे बीच में, वो अलग बात है, बट काफी फायदा होगा, राइट? सो श्रीलंका इज अ मेजर चेंज। जो मैंने एक आर्टिकल, अब क्या, एक प्रोग्राम किया था अनंत मिश्रा के साथ श्रीलंका के बारे में पिछले हफ्ता, व्हेन ही वाज इन श्रीलंका। ये पूरा हमने बताया आपको। श्रीलंका में उन्होंने ऑन ग्राउंड आपको बताया, आफ्टर विजिटिंग देयर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स, स्पीकिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि वहाँ हालत कैसे बदल रहा है। हमें मौका है हमारे इलाके में, ओके। और तो और, अभी इनका एक लीडर है जेवीपी का, जो इंडिया आया था, वो पहले बिल्कुल एंटी इंडिया था। अभी उसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, शुरू हो गया। इनफैक्ट जेवीपी इज मोर कम्युनिस्ट, इज मोर मार्क्सिस्ट इन नेचर। इनका चाइना के साथ पोस्चर है, पर वो आके हमारे साथ बात कर रहा है, क्योंकि उनको सबको पता चल गया कि उनका प्रॉब्लम है।
चाइना के साथ। कम्युनिस्ट हो सकता है, पर वो अपना देश को थोड़ी ना नुकसान करेगा। ओके? ये ये देखिए, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। पाकिस्तान चाइना स्टेल्थ फाइटर डील पुट्स इंडिया अंडर प्रेशर टू मॉडर्नाइज एयरफोर्स। ये परसों भी बात किया मैंने ओपन सेशन में कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए हमारे डिफेंस इसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। जब तक अभी, लेट मी पुट इट, चाइना धीरे धीरे मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल के बाद इंडिया और चाइना का गैप कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि चाइना हमारे साथ मनमानी नहीं कर सकता। अगर उसको मनमानी करने की जरूरत है, ऑलरेडी मेरे ख्याल में वो हद आ गया है। इन माय व्यू, चाइना कैनॉट डू एनीथिंग militarily against India anymore. And as days go by, this will only increase, or rather, the gap between India and China will decrease. That China will not be able to undertake any military adventure against India. इसीलिए it is important for China to keep Pakistan on its side, and it is therefore important for us to keep Pakistan on a leash. और इसीलिए मैं आजकल पाकिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। एक पहले कर लिया, राइट, और कुछ संडे के दिन मैंने अपडेट में भी बात किया। अगला हफ्ता 19 तारीख को एक और वेबिनार करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी और बाहर से लेके आऊं। ज्वाइन मी इन दैट। ओके, ये थर्ड फेज है। पहले मैंने आपको बात किया वेयर वी आर अहेड, देन द रीजनल। अभी इंडिया चाइना, इनका क्या राय है? इनका ये बोल रहे हैं आजकल, चाइना एंड इंडिया शुड बी ग्लोबल साउथ एंकर्स, नॉट पावर कॉम्पिटिटर्स। भाई, मांग रहे हैं ये कि पावर कंपटीशन वगैरह छोड़ो, साथ मिलके काम करते हैं। पहले तो बोलते थे ना, तू हट, मैं अपना काम करूंगा। अभी वो उल्टा ओपिनियंस आ रहे हैं कि हमें साथ काम करने की जरूरत है। ओके, ये भी इसमें एक और ट्विस्ट है। Amid Red Sea clashes, India and ASEAN must work to secure the Indian Ocean. They're talking of India and ASEAN. Why not India and China? Indirectly, they feel China can do nothing in Red Sea area. और कर भी नहीं रहा. Okay? Understand what, you have to understand that whatever comes out of the Chinese media, they're giving messages. You have to read it. You have to read. ये क्या बोल रहे हैं ये? वो अब ऐसे चीज निकल आता है उनके अपने इसमें से। ओके, ये भी इन्होंने बताया जब हमने अवार्ड दिया हमारे लड़कों को, ऑफिसर्स को। चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, 2 अनरिपोर्टेड क्लैशेस occurred. सो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर के ऊपर तनाव जारी है और जारी रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और उनको पता है। इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी उन्होंने नहीं किया। सो नॉट विथ स्टैंडिंग जो भी हो रहा है, वी हैव टू बी केयरफुल अगेंस्ट चाइना। ओके, देन व्हाई इज इंडिया अननर्व्ड अबाउट द विजिट ऑफ चाइनीज रिसर्च शिप? बड़ा सिंपल है। वो चाइनीज रिसर्च शिप आता किस लिए? इट इज चार्टिंग द इंडियन ओशन, कि कहाँ उनके सबमरीन जा सकते हैं, कहाँ उसका एयरक्राफ्ट का कैरियर जा सकता है, कितना बाधा डाल सकते हैं इनके गतिविधियों में, हमें उतना डालने की जरूरत है, और कर रहे हैं। क्योंकि कल के दिन नहीं तो वो सबमरीन लेके आके बैठ जाएगा, हमें पता नहीं होगा। ओके, राइट।
ये दृश्य देखिए, ये क्या है? यूएनएससी डोर्स में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डोर के बाहर चाइना का हाथ आ रहा है, आपको रोक रहे हैं। और ये आर्टिकल निकला, ये देखिए, व्हाई चाइना द ओनली परमानेंट एशियन मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वांट्स टू स्टे इट दैट वे। जहां भी आप जाओगे चाइना आपको अगेंस्ट मिलेगा, और यही इस आर्टिकल में दर्शाया गया, और ये चित्र जो है वो साफ बता रहा है, चाइना विल नॉट अलाउ इंडिया टू एंटर द सिक्योरिटी काउंसिल इजीली। उनको नहीं चाहिए, उनको उनको उनके लिए बिल्कुल, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन दैट देयर इज अनदर वीटो पावर इन एशिया। इट वांट्स फर्स्ट, मैं बार बार बताता रहता हूँ, चाइना वांट्स टू बी द अनडिस्प्यूटेड पावर इन एशिया। To be the undisputed power in Asia, it has to put India down. If India gets an entry into the Security Council, it will China will not be a regional power, undisputed regional power. If that doesn't happen, China's ambitions of being a global power are far away. So they will do their best. So चाइना और इंडिया का किटपिट चलता रहेगा ऑन द बॉर्डर, इन द सीज, and in geopolitics and in world organizations. दुश्मनी होगा, ये दुश्मनी की बात कर रहा हूं मैं, ओके? क्योंकि 2000 में जब मैं हायर कमांड कोर्स कर रहा था, मेरे को याद है मैंने चाइना का डेजर्टेशन लिखा था, और उस चाइना का डेजर्टेशन को रिसर्च करते वक्त, उस वक्त मेरे को याद है जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था चाइना इज इंडियाज नंबर वन एनिमी। वो मेरे दिमाग से गया नहीं, पाकिस्तान कोई चीज है ही नहीं, चाइना। इसीलिए मैं चाइना के बारे में इतना बात करता हूँ, इतना रिसर्च करता हूँ, आपको देता हूँ। मेरे को पता है आप लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते हो, पर जब चाइना वाला ये बोल रहा है तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। ओके, ये तो हमने बात कर लिया। ओके, ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया कि इसको क्लैरिफाई करने के लिए, राइट, a query, उसके the interesting parts which I will explain. Sir, I have been watching your video, uh, crashes of the China dream over the past week and found it extremely insightful. Thank you. You say they know they are collapsing and they're trying to control it, but it is irreversible. Okay, right. If they know they are collapsing and that is irreversible, the first step, of course, is to control it, to allow it for as soft landing as possible. What we, what is, which is what we see them do. My question is the next step. What do you think they plan to do post that collapse? Very simple. That is why General Rajiv Narayanan and I did that program on the slow collapse of China. It's they're doing the soft landing. They're doing it okay. They're not allowing themselves to collapse. क्योंकि जिस दिन collapse हो जाएगा, TRC will collapse. Communist Party will collapse. Okay, so there's a problem. So what is the next step? The first thing they will do when as they're collapsing is to consolidate internal hold over the nation. The communists will not allow power to go out. That will be the problem. Okay, there will be global ramifications because a lot of your global markets will get shaken. Already they're shaken. There will be inflation globally. As it is, there's global inflation because of the wars in Ukraine and in West Asia. अगर यहाँ कोलैप्स शुरू हो गया तो यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. Okay, what do you think the Chinese leadership should do to get leadership position post the collapse? इनको leadership position नहीं मिलेगा. So what will the Chinese leadership do? They will do military mercantilism. उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा. इसीलिए वो मिलिट्री बना रहा है. उसको डर है कहीं ना कहीं उसका एक दिन इकोनॉमी लुढ़क जाएगा, वो कोलैप्स होने लगेगा. इसीलिए वो एक बड़ा मिलिट्री बना रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रहा है कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के जरिए पकड़ रखे चाइना के अंदर, और बाकी सबके ऊपर गोली दिखा के कि भाई मेरे साथ ट्रेड करोगे आप.
नहीं तो हम आपके साथ कुछ और करेंगे. It is blackmail, wolf warriorism. He will do. That's what he'll do. और कोई चारा नहीं रहेगा. Okay. और भी है. We know such a collapse will inevitably open great opportunities too. There's no doubt. So, तीन सवाल. What do you think such opportunities would be like? The opportunity is for India to grow. The opportunity is for India to enter the Security Council. A weak China will be good for us. What are the signs that they are preparing to leverage them? We have to leverage them. They are already preparing for that collapse, I told you, through their military. They want to do mercantile adventurism. They look बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करेंगे, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए. कैन वी पुट अ स्पोक इन देयर व्हील्स? यस, वी कैन. जैसे जैसे हम स्ट्रांग होते जाएंगे, तिब्बत का टेम्परेचर बढ़ाइए, जिंजियांग के टेम्परेचर बढ़ाइए, अपना नेबरहुड पकड़िए, उनको उलट कीजिए, उनका एक्सपोर्ट्स कम कीजिए. बहुत हैं, हमारे रास्ते बहुत हैं. फॉर्म पार्टनरशिप्स विद जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, ऑल दैट दोस कंट्रीज. क्वाड को मजबूत कीजिए. ये सब बहुत विकल्प है हमारे पास. ओके, बहुत विकल्प है हमारे पास. हाउ शुड वी लीवरेज द कोलैप्स टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज? ये तो हो ही रहा है ऑलरेडी. प्रिपेयर टू गेट मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. जैसे जैसे वहां धीरे घटता जाएगा, यहाँ आएंगे. बट वी शुड नॉट बिकम अनदर चाइना. वी शुड बी सेलेक्टिव इन व्हाट वी डू, ताकि यहाँ पोल्यूशन ना शुरू हो. ओके, व्हाट डू वी नीड टू डू टू प्रिपेयर टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज? हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए. जैसे अभी देख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तालमेल की जरूरत है. जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और उन स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में तालमेल नहीं है. अगर वो हो गया और एक हम इन्वेस्टमेंट के तरीके ठीक करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. आपको अगर ये हमें पता है कि चाइना क्या करेगा, तो डिफेंस में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है. ये मैंने संडे को भी बताया था कि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं डिफेंस डिफेंस के अंदर. जब तक हमारा फौज मजबूत नहीं होगा, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते. हम भी वीटो पावर ले नहीं सकते. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हमें सीट चाहिए, हमारा एक चीज जो भी यहाँ अभी रेड सी में हो रहा है और जो भी नॉर्थ अरेबियन सी में हो रहा है, वो हमारे फायदे के लिए ही है. अब इंडियन नेवी और यूएस नेवी, ये दो ही बड़ा नेवी है जो वहाँ काम कर रहे हैं. अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 5 6 साल 10 साल के अंदर हमारा फौज मजबूत होगा. फौज मजबूत होने की जरूरत है. हमारा मिलिट्री डिप्लोमेसी को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके ऊपर मैं एक कार्यक्रम करूंगा. ओके, और लास्ट पॉइंट. ओके, ओके, ये सेकंड पैराग्राफ देखिए. द की पॉइंट्स टू नोट आर द क्रैश ऑफ एनीथिंग दैट गोज अप इज इनएविटेबल. ये भी हमें पता है. इन केस ऑफ अ वैल्यूएशन बबल एंड क्रैश, द इन्वेस्टर्स लूज देयर मनी. द सब्सिक्वेंट डैमेज इज इरिवर्सिबल. एवरीथिंग इज लॉस्ट. ये चाइना में ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि एक हाउस होल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है चाइना के अंदर, 70% फ्लैटों के अंदर है. और फ्लैटों का कीमत घट गया है, तो वैल्यूएशन फ्लैट्स का घट गया है. तो चाइना में ये ऑलरेडी गरीब हो गए. लोग गरीब हो गए. यही तो मैं बोलता आ रहा हूं मैं. इन द केस ऑफ अ debt fueled bubble, debt is usually used to create assets on the ground, and these remain post the crash. सही बात है. अगर आप इमारत खड़ा कर दोगे, बाकी कुछ हो या ना हो, वो इमारत तो है, राइट. अब और ये बोल रहे हैं कि of course approximately 90% of their value is lost, but the asset remains and can be used. And that is what I see the Chinese are doing. Okay, सही बात है, लग रहा होगा आपको, बट इसका डेट बबल शुरू हो गया. आज माइकल पेटिस का मैंने एक सुना है. वो क्या हो रहा है, चाइना में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो 70
रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो 100 रुपए उधार ले रहे हैं डेट। इंटरनल डेट कहाँ से ले रहे हैं? इंटरनल लोगों से, थ्रू लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स, बाय गिविंग टेकिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड्स दे रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं कि उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, जो मिल नहीं रहा, और बॉन्ड का वैल्यू घट रहा है, इसीलिए तो मार्केट्स डाउन है। और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बना दिया, उसके ऊपर भी इनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो लोग गरीब हो रहे हैं इससे। हाँ, आपके पास एसेट तो होगा, बट एसेट के साथ क्या करोगे? छाटोगे रोड को, जब आप उस रोड का कोई फायदा नहीं है, आपका ब्रिज का कोई फायदा नहीं है, और या वो इमारत जो खड़ा किया इन्होंने उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो चाइना का जो हालत है, काफी टाइट है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब क्या है कि एक दिन चाइना कोलैप्स हो जाएगा। चाइना का ओवरऑल इकोनॉमी बड़ा रहेगा, बट इट विल नॉट बी अ परफॉर्मिंग इकोनॉमी, राइट? ये प्रॉब्लम्स जारी रहेंगे, और धीरे धीरे ये सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने सोचा नहीं था ये इसने बता दिया। वो अपना नाम बताना नहीं चाहता, मैं जानता भी हूँ जिसने इतने सवाल पूछे हैं मेरे पास। ओके, सो देयर इज अ थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि इंडिया इज ऑन द राइज। इट इज इंडिया इज नॉट ऑन द राइज। इंडिया आफ्टर यूएसए, ये मेरा मानना है, आफ्टर यूएसए इंडिया इज द ओनली कंट्री which can militarily handle China. No other country has the capability, and we have proven it. And if India and USA get together, you outmatch China. ये तो बेसिक अकल की बात है, एंड वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस। मेरे को ये भी पता है कि यूएसए के साथ हम विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते, बट मौके की बात है, मौके में मौका, राइट? सो थैंक यू आप सब लोगों को। बहुत सवाल है, मेरा लास्ट में यही मेरे आप सब लोगों को विनती है कि यकीन करें, इंडिया इज डाउजिंग द ड्रैगन। कृपया सेकंड, आप लोग जितने आपने कमेंट दे दिया, थैंक यू। लाइव कमेंट्स आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें भी आप आपका विचार प्रकट करें। इफ यू लाइक, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और if you're watching this video for the first time, you're coming to Ghana Shot for the first time, please subscribe. Okay, we'll now take questions. Okay, okay, पहले से right. So China has utter contempt. No, I'm not interested. Whether he has contempt or not, I'm not interested. I'm very glad he has contempt, because when he has contempt, he'll do better. I have this notion that he'll be deceptive as always and make a noise in the east and attack west, and make some moves along LAC for a quick smash and grab to try to bully and browbeat us. See, Shrutik, you have been coming on my show for so long, okay, and you have been listening to me for so long. You still want to talk like this? That he can do this, he'll attack in the east and grab in the west and all this. You can't you do that? We know he's going to be deceptive. There's no doubt about it. So prepare for it. Okay. But be strong about it. Be confident about it. Okay. Okay. How do we design a counter warfare strategy against him in the gray zone, especially social media? His people are behind an iron curtain and not as big as some of ours. Don't think so. You talk what you have to talk, he gets the message. आज जितने भी मैंने आपको बताया है, ये कहाँ से आ रहा है ये?
वहां से आ रहा है ना, उनको पता है. In China, you have you cannot attack the people, so you attack the Communist Party, his mindset, his media, his influence ops, his military, his outside capability, his BRI. You have to do a different attack. In Afghanistan, you have to reach out to people. In China, don't reach out to people. You have to attack his strength and his vulnerability. You have to play gray zone. You have to start doing that. I completely agree with you. So, what is the secret agreement between CCP and Congress? Why no? I don't think there's anything great in that. That's why it's not being disclosed and it's not being said. What can they disclose? What can they have agreed upon? See, you must understand, Ajay. A lot of people crib against this whole story. When this agreement was signed between Congress Party and CCP, the relations between India and China were good. Why go against Congress? Why not go against the BJP? Why not go against our Prime Minister? As when he was the Chief Minister at that time, he had maximum Chinese investment. After all, when he took over as the Prime Minister, he put faith in the Chinese Prime Minister and brought him here. आज Xi Jinping को ले आए अहमदाबाद पहले. That was a time when उस वक्त की बात है ये. You have to have a balanced view. आप बिना बाकी बड़ा दृश्य देखते हुए सिर्फ आप कांग्रेस पार्टी को क्यों अटैक कर रहे हो? मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं इंडिया के साथ हूं. तो व्हेन आई टॉक ऑफ इंडिया, पूरा दृश्य देखो भाई. आप एक ही हिस्सा देख रहे हो, सही नहीं है. ओके, इन केस ऑफ मेजर conflict breaks out, how will PLA react? They'll fight. We'll also fight. Barely any officers have real combated. They keep running away in UN, PKF, and anti-piracy ops. Does PLA have stomach? They will not have a stomach for real war, and that is why, as I said, he will not be able to do anything. Or जैसे as days go by, his ability to pick up a military adventure against India will go down. That is how you're dousing the fire. Understand this. You're right. Okay. Are we following the path of China 20 years ago, a path of blistering growth followed by slow stagnation and eventual decline? No. Our path is as per our thing. The problem with most other countries is that India is not becoming another China. That we are not put our things in place. We are not fast enough. Our governments are not responsive enough. We have this, that, and all. I'm glad. I'm very glad. We are not in a hurry. We should not be in a hurry. We should go slowly up so that we can't come down. Consolidate at each level and go up so that you don't slip back. And if you do slip back, it's only marginal. See, what happens tomorrow, we don't know. We shouldn't be facing what China is facing. China is definitely facing a collapse. Call it a decline, call it a collapse, call it whatever you want, but it is not going up. Okay? People in the West do not want to accept China's decline the way it is declining. Why? Because they have interests in China. देयर मनी इज स्टक इन चाइना. अगर कल के दिन बोलेंगे कोलैप्स तो मार्केट कोलैप्स हो गया तो उनका भी कोलैप्स हो जाएगा. But slowly they're pulling money out of China. And if people start pulling money out of China, there's an internal collapse happening. So, and I told you, in the next 5-6 years, you will see the change. Already in the past 3 years, you have seen the change from 2020 to now when I've started coming on this YouTube. Okay, when I started coming with P Gurus and Dev Talks and uh, Jaipur Dialogue. Still, last year I started my story. There's a change. Compare the change from then to now and see ahead and project it ahead.
One day, I'll draw a graph of our GDP growth, the way it's growing and where we'll be. So there's no blistering growth in India. It's a slow growth. I'm glad. For a meaningful growth, a North Indian state should make major industrial. You have a point. And I also see some comments talking of North-South divide. It's not a matter of North-South divide. Complete India should grow. And for India to grow, UP, Bihar, Chhattisgarh, MP, Rajasthan need to grow. Look, what's happening for farmers' protest Punjab is a different story. We'll not talk of it. I'll talk of it someday. But we need even Bengal, Northeast to grow. The scope for growth is huge. That is why that deal with Bhutan on the hydropower and energy is big because it will electrify that entire area. You get energy. When you get energy, that place will grow. A whole lot should grow. Unless our heartland grows, right? India won't grow. We all have to grow together. There's no point in saying north is better, south is better. No. There's also no point in saying, many people say, oh, Hindi में ही बात करो. No, we should speak in all languages. अगर आप कोई नोट लो, जितने languages हैं, वो सब Indian languages हैं. Whether it's Bangla, Assami, Mizo, I have no problem. We should all grow. We should have a broader vision than what politicians have fed into us. Thanks. Your program is different with a rich and unique coverage. Thanks. Oh, spread the word. Help me. Help me take it to other people. Let more people come into my thing. Yeah. I think China started behaving like a superpower and it was nowhere near it. That may have brought it down before it can actually be there. Jai Shri Ram. I agree with you, Banaji. Right? और मेरा तो यही होगा जय माता जी की और चाइना डूबे तो जय माता जी की ओके oh this is a high compliment only with a rich taste would appreciate I agree with you it's not a matter of taste you have to you have to understand what I'm talking you go to other channels it's entertainment I one day asked Sanjay Dikshit ji yaar why are you doing such shows because a lot of people want entertainment so I do entertainment. There are a lot of entertainment on my show. So when I go there, I talk the way they want me to talk. But on my own show, I don't talk of it. Yeah. Sharmila, comment. Thank you. Okay. Oh, sir, watching live from USA. Salute to you and thank you. Yeah, thanks a lot, Deepak. Get your friends from USA to watch it. And I need more members. I need more members. Yeah. The Chinese, I hope the Chinese know that the dragon is an imaginary creature while the elephant, yes, they know. That's why these articles come. Putting it mildly, the domestic media appears to be playing into the hands of anti-national vectors. I've given up on the print media. Yeah, we have problems with our media. Our media is, you know, too politicized, too polarized. That is why I don't go to any media channel. Everyone has called me, NDTV, India Today, Republic. Everyone has called me. All these fellows have called. I don't go. CNN. I don't go. That's why I want to talk because what I want to talk my heart out and the truth, the way I look at it. Yeah, Bharat needs to grow holistically across the length and breadth. I think that's the right. Uh, my feelings with respect to China has changed from apprehension to cautious optimism at our chances of success only because of your channel. Don't worry.
I would say wildly optimistic is also good enough. You must be optimistic. Yeah, greetings for the day, Ram Ramji, Ram Ram. Mm, what is the India-Tibet policy in future? I'll get someone from Tibet to talk about it. Just wait, Nipun. Right. At an young age, I used to think India should also have dictatorship. Then I watched this documentary, Nine Commentary of a Communist NDT, a complete series about how, yeah, it's bad. We shouldn't have this thing. Now I love our democracy. It's beautiful. Whatever it is, however imperfect it is, we can keep cribbing about it. It's the best. Look, when you go all around the world, then you realize how free you are in India. कोई भी देखिए, I'm not being um, disrespectful to anyone. India is one country where you can tell the president or the prime minister that you're an idiot and get away with it. You try it in any other country. चाइना में जाके बोलिए शी जिनपिंग को तो भाई तुम बेवकूफ है, तुम गायब हो जाओगे. ओके, राइट. या थैंक्स अ लॉट. बहुत दिन के बाद आप आ रहे हो, राइट. थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंट्रीब्यूशन. राइट. ओके, व्हाट नेक्स्ट? या ओके, Partha says Mr. Trump has said he will bring sanctions on China if he returns. Will manufacturing spread out across global south by then? If supply chains are threatened, again prices may shoot up. Yeah, this will happen. This is a cycle. But Trump, look, whatever Trump does for USA, NATO, FATO, and all, Trump will be good for India. That is my prediction. I have no problem with Trump. Uh, he's been very good towards India because he's the first person who turned the screws on China. Okay, CP has successfully involved China in the defense of Pakistan's eastern border, GB and POK. I don't think so, not as it. It's not come to that. CPC is a problem for China and Pakistan from now on. Do you support farmers' protests? What are your views on MSP? I'll do a separate program on it. Let it unfold. We are talking on China. We are talking of taking on China when the beggar Pakistan is violating ceasefire when they are already having. I don't. Again, uh, what is Pakistan doing? It cannot afford violating ceasefire. Understand that. It just cannot afford violating ceasefire. In fact, uh, which I didn't mention in my talks, is that Pakistan has started trying to normalize relations with India, despite all this nonsense which is going on there. Because they've now given visas for diplomatic staff to come across. They were hoping that if the government forms and they start opening up relations with India, of course, the LOC ceasefire is held, the border ceasefire is held. Okay, so few things will not run away from Kashmir. In fact, if you want to get a holistic view of India and China, sorry, India and Pakistan Army and Indian Army, what we have done. See yesterday's, video which I did with Tahir Gora. I put it in the comments show, and I put it on Twitter also. Okay, I put it on as my post. Okay, so do that. You'll understand. Have you watched Putin's interview on Fox? Will the war in Ukraine stop after Republicans come back to power? Also, Texas guard versus. We'll see how it happens. What Putin was giving a message to America, but how this will play out, we'll come to know. And after all, remember, the elections in USA are in November. There's a long way to go. A lot of things can happen. Okay, and don't
don't get carried away by this problem between federal guard and National Guard of Texas and all that. If you look at the Texas Constitution, it is called a Lone Star state. It has its own issues. Okay. Fundamental research translating into commercialization is a major gap and key differentiation. China is willing to invest in high stake risks to advance deep tech. Yeah, I agree with you that they do. It paid off. It might not pay off again. I also agree that we are cautious, but that's the way I would like to be. I don't want to go in a hurry and regret at leisure. I would like to go in leisure, and I would like to rise at leisure and never regret. The last question, in context of my earlier question, would China ever militarily intervene on behalf of Pakistan or cooperate with Pak military or in collusion to save? No. This is the view in Pakistan, that China will not do anything for them. And that is why China did nothing when in 20, in 2020 when the Chinese came into Eastern Ladakh. They'll not. Don't worry. Why don't Pakistan army declare? Wait till 19th for the next program. We'll discuss this. We'll discuss this issue of martial law. Like I said, I'm trying to get someone from outside. If I get, we'll find. Otherwise, there'll Vinod Bhatia, there'll Gautam Murthy, and two more. It'll be same thing like last week. Okay. Thanks a lot. We've had a great evening. Again, please spread this message to everyone. Because what I've said today is the Chinese view of India, not India's view of India or China. Right? Get more people to start watching Ghana Short. Thank you. Good evening and Jai Hind.